इतना सा फर्क है कुछ होने में और बहुत कुछ होने में। इतना सा फर्क है एक बार सोच छोड़ देने में और लग के कर दिखाने में। मान लेने में कि जिंदगी ऐसे ही कटेगी और सुबह 4 बजे उठ के सोचने में ये अभी तो बस शुरुआत है। किसी मैगजीन को हाथ में लेने में और उसी मैगजीन के कवर पेज पे होने में इतना सा ही तो फर्क है। वीआईपी सीट में और उसकी पिछली सीट में इतना सा ही तो फर्क है। वो जिसका मैदान ही खुला आसमान है वही कल जमीन पर तो था। पूछोगे तो बताएगा वो पंछी। ये एक दायरे में सिमटने में और पूरी दुनिया को दायरा बनाने में बस इतना सा फर्क है। इतना कितना है? इतना है या इतना है? जो नापेगा वो जाने कि जहां धरती और आसमान मिलते हैं, नानकुर से दूर, अगर मगर शायद से दूर, वहां भी दोनों में फर्क बस इतना सा है। धरती और 7वें आसमान में फर्क बस इतना सा है। ये एक अंतर प्रेरणा है। ये हमारी, आपकी, हम सब की अंतर प्रेरणा है। एक कदम, एक छलांग, एक बाजी, एक गहरी सांस और एक ललकार खुली हवाओं में कि हाँ मैं बना हूं उन फिजाओं के लिए, कि हाँ मैं बना हूं उन ऊंचाइयों के लिए जो ऊंची तो बहुत है पर नामुमकिन भी नहीं, क्योंकि मुमकिन और नामुमकिन में बस इतना सा फर्क है। धूप छांव में फर्क बस इतना सा है। तो बस चलिए फ्रेंचाइज इंडिया के साथ ये फर्क मिटा देते हैं। फ्रेंचाइज इंडिया, 20 years of ideas. Good afternoon, everyone. A warm welcome to our Business Opportunity with Chai webinar series. This is a series which we have planned to talk about and showcase all the important brands for all our investors, those who have joined us today. We'll try to take you through the correct and the complete understanding about the business proposal with the help of the presentation from our side. Moving towards our panel discussion, we will take all the queries. Allow me 1 minute to do a setting, please. The particular webinar is hosted by management team of Franchise India, Gaurav sir and Sonia ma'am. We'll try to give you the correct and the complete understanding about the business proposal as well as financial model with the help of the presentation. As we have invited our brand team member to talk about this particular business opportunity. There is a question and answer box and we request each one of you to share all your queries to maximize this particular webinar. And the business opportunity which Franchise India team is launching today is Shane Awad. It's a Delhi-based celebrity favorite QSR brand. They are offering good profit margin to all our investors, and you can start this particular business with as low as investment of 12 lakh rupees. Today we have invited Rajneesh ji to talk about this business model. Rajneesh ji, thank you so much. आपका अभिनंदन करते हैं हम. Welcome to this particular webinar, sparing the time. Just allow 1 minute to share the PPT with you, and then probably we'll start it. But before the time I start the presentation, अगर आप हमें बता सकें कैसे जर्नी स्टार्ट हुई और क्या विजन है? Ma'am, journey, it's a small word. We started with the centralized kitchen in Okhla, and we started हम लोग बिरयानी एंड रोल सप्लाई करते थे in PVR. Then we started supplying to different, BPOs, Accenture हो गया, Airtel हो गया. Then Pan India जब हम लोग ये करते थे बिरयानी एंड रोल्स फॉर PVR, then we started the restaurant also, and फिर हमने उसको ड्रॉप करके प्रॉपर रेस्टोरेंट लाइन में हम लोग आए, क्योंकि फूड का क्रेज था. एक चाह रहे थे कि जितने भी हमारे क्लाइंट हैं, ये कस्टमर्स हैं, उनको हम प्रॉपर ऑथेंटिक टेस्ट दे पाए, जो मोस्टली मिलता नहीं है. I've seen so many times कि फूड के नाम पे लोग कुछ भी खिला रहे हैं. तो हम लोग चाह रहे थे कि एक ऑथेंटिक प्रॉपर फूड मिले लोगों को, इसलिए हम लोगों ने ये शान अवध स्टार्ट किया. Sure. Thank you so much, sir. So PPT is on screen. We can start with the presentation from your side. मैम, शान अवध का एक ही फोकस है, only to provide best and authentic food to the customers.
मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारे यू नो कंपनीज हैं, जो ऐसा नहीं कि फूड लाइन में हम ही हैं, बहुत सारे हैं। बट द फूड स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। आप कभी भी, कोई भी इन्वेस्टर या कोई भी, मोस्ट वेलकम। आप कभी भी आके हमारे किसी भी ब्रांच पे फूड टेस्ट कर सकते हैं। अ, हमारे कहने में या बाकी कंपनीज के कहने में सिर्फ एक ही फर्क है कि फूड टेस्ट जो आप हमारा करेंगे और जो किसी और का करेंगे, उसमें जमीन आसमान का आपको फर्क मिलेगा। तो वी स्टार्टेड कि हम लोग फूड लवर्स को पकड़े, एंड कोशिश यही है कि पहले एक साल में 10 एक आउटलेट्स के आसपास की हम लोग ओपनिंग करें। जैसे मैंने आपको बताया कि दिल्ली दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, इस टाइप की जगह पे हम लोग जाएं, ताकि वहाँ पे टेक अवे, डिलीवरी एंड रेस्टोरेंट प्रॉपर हो, एंड प्रॉपर मुगलाई अवधी क्यूजीन मिले लोगों को। और हाई फोकस एरिया एज इट्स ऑल कॉमन, कि हाई स्ट्रीट मार्केट हो, जहाँ पे प्रॉपर तरीके से वॉक इन अच्छी हो, एंड वी प्रेफर ग्राउंड फ्लोर हो, ताकि कस्टमर्स की वॉक इन अच्छी रहे उसके ऊपर। सी, वी आर द ओनली कंपनी टू फोकस ब्रिंग मुगलाई फूड टू द बोर्ड रूम। पहले हम लोग ही इकलौते कंपनीज ऐसी हैं जो पीवीआर में आपको पॉपकॉर्न मिलते हैं, आपको सैंडविचेस, बर्गर्स, ईच एंड एवरीथिंग मिलते हैं, बट वी आर द फर्स्ट टू स्टार्ट बिरयानी एंड रोल्स, ताकि ये एक मुगलई टच भी है जो आपको पीवीआर में मिले। तो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन दिस, एंड वी यूज क्वालिटी रॉ मटेरियल एंड प्रोडक्ट्स फ्रॉम रेप्यूटेड सप्लायर्स ओनली। कोई भी लोकल वेंडर से हम लोग नहीं लेते हैं। कोई भी लोकल वेंडर अगर हमारे पास आता भी है कि लेट्स सपोज आई सेल पनीर, आई सेल चिकन या ऐसा कुछ, तो हम लोग उनसे नहीं लेते, ताकि क्वालिटी और क्वांटिटी उसमें एक जैसी रहे, एंड हाइजीन का प्रॉपर ख्याल रखा जाए। एंड वी यूज आवर सेल्फ मेड स्पाइसेस। हम लोग कोई भी MDH, एवरेस्ट, कोई भी मार्केट में जो मसाला हम लोग नहीं यूज करते हैं। हम लोग अपने मसाले खुद बनाते हैं। ईच एंड एवरी मसाला, वेदर इट्स चाट मसाला, बिरयानी मसाला, कोरमा मसाला, एनी मसाला, वो हम सब अपना खुद बनाते हैं, एंड वी रिलाई ऑन दैट ओनली। उसी से कंसिस्टेंसी आती है, टेस्ट की भी, और यूनिफॉर्मिटी रहती है हर आउटलेट पे। एंड एज सेड कि मेन्यू हम हर 3 मंथ्स में मेन्यू को हम लोग अपडेट करते रहते हैं, ताकि एक कस्टमर, जो रेगुलर कस्टमर्स हैं, उनको कुछ नया मिलता है। मैम, सॉफ्टवेयर जो हम यूज करते हैं, वी हैव इन्वेस्टेड इन सॉफ्टवेयर जहाँ पे प्रॉपर एक ट्रैकिंग रहती है कस्टमर्स की। कस्टमर्स कब आए हैं, क्या उन्होंने खाया है। एक आप मोबाइल नंबर डालेंगे, आपको पूरा उनका ब्यौरा आ जाएगा कि व्हेन ही विजिटेड, क्या उन्होंने खाया है, हाईएस्ट सेलिंग आइटम क्या है, उनकी चॉइस क्या है। इसके अलावा बर्थडे हो गए, एनिवर्सरीज हो गई, उस पर विशेष ऑलरेडी चली जाती हैं। एंड एसएमएस गेटवे है, जिसमें अवध के नाम से ये सारे मैसेजेस जाते हैं। एंड वी हैव ऑलरेडी शानेवत, इट्स अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क वाज रजिस्टर्ड इन 2013। इसके अलावा ऑनलाइन मार्केटिंग एज यूजुअल हम लोग करते रहते हैं। फेसबुक है, जस्ट डायल है, जोमेटो है, एंड फूड पांडा, टाइनी ऑल इज नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग, बट वी यूज्ड टू डू दिस आल्सो। ये दीज आर सम ऑफ द पिक्चर्स जो हमारी अपनी पिक्चर्स है, नो गूगल नथिंग। ये हमारे अपने रोल, शामी एंड बिरयानी कोरमा की इमेजेस हैं, जो एज पर एक्चुअल है। दीज आर नॉट गूगल इमेजेस। फ्रेंचाइजी में इन्वेस्टमेंट रेंज 12 लाख से 15 लाख की होती है। अगर आप रेस्टोरेंट ओपन करना चाहें अराउंड 800 स्क्वायर फुट के आसपास। अगर कोई टेक अवे करना चाहे तो टेक अवे 250 स्क्वायर फुट में भी वो कर सकते हैं। अगर किसी के पास स्पेस कम है, या बट ही इज इंटरेस्टेड इन फूड एंड स्पेशली शानेवर, तो हम लोग कहते हैं आप टेक अवे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जो लोकेशन है वो हाई स्ट्रीट मॉल्स या कमर्शियल मार्केट्स में हम लोग देते हैं, सर्वे करते हैं कि जो भी लोकेशन है, जो भी आउटलेट हम लोग ओपन करें, वो इसी के आसपास ही करें। एंड लेट्स सपोज आप 250 स्क्वायर फुट का कुछ खोलते हैं, तो 5 एम्प्लॉयज इज इनफ फॉर ओपनिंग 250 स्क्वायर फुट टेक अवे। और रेस्टोरेंट में 5 to 10, एंड ये बढ़ जाते हैं एज पर योर सेल, जो आप सेल करते हैं उसके अकॉर्डिंग। सी, फ्रेंचाइजी एक्सपेंशन में अगर आप टेक अवे मॉडल लेते हैं, तो टेक अवे मॉडल में एरिया इज
वी नीड एरिया अराउंड 250 to 300 स्क्वायर फुट। इन्वेस्टमेंट आपका 10 से 12 लाख रुपए रहेगा, जिसमें 5 लाख फीस, फ्रेंचाइजी फीस ऑलरेडी इंक्लूडेड है। एंड एवरेज पेबैक पीरियड इज 1.2 years। It can be 1 year, it can be 9 months, it can be 1.5 years also. And agreement term is 5 years, जिसमें हम लोग ऑन एग्रीमेंट रिटर्न गारंटी देते हैं कि जो भी स्टाफ है, आपको स्टाफ से रिलेटेड, किचन स्टाफ से रिलेटेड कोई भी यू नो दिक्कत परेशानी, एनीथिंग इन सिंपल लैंग्वेज हम लोग बोले तो वो नहीं आएगी। इट्स ऑल ऑन आवर्स। जो भी स्टाफ रिक्रूट करना है, जो भी स्टाफ लेट्स सपोज चेंज हो रहा है, तो आपको टेस्ट में कुछ चेंज नहीं मिलेगा। लेट्स सपोज इफ समवन इज मेकिंग बटर चिकन और एनी अदर ग्रेवीज फॉर यू, अगर वो स्टाफ या वो शेफ चेंज होता है, दूसरा शेफ आता है, तो कंसिस्टेंसी टेस्ट की आपको सेम रहेगी, क्योंकि वी कीप ट्रेनिंग स्टाफ ऑन द बैक एंड। एंड रेस्टोरेंट पे 800 स्क्वायर फुट से 1000 स्क्वायर फुट हमें चाहिए होता है, जिसकी इन्वेस्टमेंट इज अराउंड 12 to 15 लाख रुपीज, जिसमें 5 लाख रुपए फ्रेंचाइजी फीस ऑलरेडी होती है। And average payback period is 1.5 years. It can be again 1.8 and it can be 1 also. Terms remains the same. And ये I think ये बहुत ही low investment range है, जिसको I don't think इससे कम कोई range investment में आपको कोई और brand मिलेगा। शानीवत को हम लोग एज यू कैन सी हम लोग ऑनलाइन प्रमोट करते हैं थ्रू जोमेटो स्विगी। जोमेटो एंड स्विगी से टाई अप, क्योंकि हम एग्जिस्टिंग इनसे टाई अप है हमारा, तो इनसे टाई अप भी हम ही करके देते हैं। इसमें जो भी इन्वेस्टर्स है उसको कोई ज्यादा यू नो हैसल नहीं होना चाहिए, ये हम लोग करके देंगे। इसके अलावा मैजिक पेन है, जिससे हम लोग एसोसिएटेड हैं, जिसमें डिफरेंट कूपन्स, डिफरेंट ऑफर्स चलती रहती हैं डेली बेसिस पे। जस्ट डायल पे, फेसबुक पे एंड इट्स कंपनी फासोस, इससे भी हम लोग टाई अप है, ये भी फूड डिलीवरी में ही डील करते हैं। एंड डाइन आउट है, डाइन आउट पे भी यू कैन रिजर्व टेबल थ्रू डाइन आउट ऑल्सो। डाइन आउट से आप टेबल रिजर्व कर सकते हैं शानेब का। एंड अगेन इनसे जितने भी हम टाई अप करके देते हैं। इसके अलावा हमारी एज यू कैन सी जो भी हमारी ब्रांच है, उस ब्रांच में ये कॉमेडियन है चंदन प्रभाकर, जो कपिल शर्मा के साथ रहते हैं। इन्होंने शानेवत विजिट किया है। पंजाबी सिंगर मलकीत सिंह जी हैं, इन्होंने शानेवत विजिट किया था। राजीव ठाकुर है अगेन कपिल शर्मा फेम के, इन्होंने भी विजिट किया। सारेगामापा लिटिल चैंप है, ये भी आए थे। एंड एक्टर सुनील शेट्टी जी आए थे, जिन्होंने फूड को बहुत अप्रिशिएट किया। इसके अलावा पंजाबी सिंगर जैजी भी हैं, ये आए हैं। देयर आर अदर सेलिब्रिटीज ऑल्सो, जैसे विंदु दारा सिंह है, वो भी आए हुए हैं हमारे यहाँ पे। 1000 स्क्वायर फुट एरिया में जो आउटलेट साइज की इन्वेस्टमेंट है, वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। इनिशियल फ्रेंचाइज फीस इज 5 लाख रुपीज। देन we take a refundable security amount of 1 lakh rupees that is refundable. Around 5 lakh rupees जो है वो इंटीरियर में लग जाते हैं, इंटीरियर सेटअप में of 800 to 1000 square feet. Kitchen setups comes between 2.5 to 3 lakh rupees, around 2.5 है जो लग जाता है। इनिशियल स्टार्ट करने के लिए रॉ मटेरियल्स, जैसे एज आई सेड कि हम लोग अपने मसाले खुद बनाते हैं, तो रॉ मटेरियल, पैकिंग एंड ऑल, ये सब का एक्सपेंस अराउंड इतना इनिशियल लग जाता है। दिस टोटल कम्स अप टू 14,20,000। एंड इफ वी एनालाइज सेल या प्रॉफिट, अर्चना जी थोड़ा सा डाउन करेंगे प्लीज इसको, थैंक यू। बेयर मिनिमम वर्स्ट टू वर्स्ट के सिनारियो में अगर हम 20,000 की सेल लेते हैं, तो टोटल रेवेन्यू इज 6 लाख। फूड कॉस्ट वेरीज फ्रॉम 30 to 35%, बट हमने 35% लिया है, दैट कम्स अप टू 210। लेबर एक्सपेंस अराउंड 25% होता है, जिसमें 1.5 लाख हमने लिया है लेबर, जिसमें इंडियन शेफ हो गया, तंदूर शेफ हो गया, उनके हेल्पर्स हो गए, एंड एक क्लीनिंग बॉय हो गया। देन expected rent of 800 square foot is around 60-70,000, 800 to 1,000, तो 70,000 हमने ये लिया है। 6% रॉयल्टी है जो हम लोग चार्ज करते हैं, that is 36,000 if we sell for 6 lakh rupees. So profit margin comes up to 22%, 1,32,000 है जो एक्सपेंस, जो प्रॉफिट
जो है वो बचता है आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस। इसमें कुछ रनिंग एक्सपेंस होते हैं, अगर उसको भी डिडक्ट कर जाएं, बट स्टिल द इन्वेस्टर इज इन प्रॉफिट ऑलवेज। इन्वेस्टमेंट का अगर ब्रेकडाउन मैं बताऊं तो फ्रेंचाइजी फीस हो गई 5 लाख रुपीज। देन एसीबी बैकलिट साइनेज हम लोग बनाते हैं, एक्सपेक्टेड प्राइस इज अराउंड 40,000। एंड इट डिपेंड्स की शॉप की, जो भी रेस्टोरेंट आपने स्पेस ली है उसका फ्रंट कितना है। अगर ब्रॉड ज्यादा है तो इसका दैट कैन वेरी। देन अ टिपिकल 3+2 बर्नर सेट कम्स अराउंड 35,000। उसके हुड हो गए फॉर चिमनीज। देन a single exhaust system, 5 4 5 वर्किंग काउंटर्स हमें चाहिए जिसपे स्टाफ सारा काम करता है। अ सिंगल माइक्रोवेव, सीलिंग मशीन जो 18,000 के आसपास आती है। देन प्रोवाइजर हो गया, दैट इज 12,000। किचन यूटेंसिल्स 50,000 के आसपास आ जाते हैं, जिसमें सारे हम किचन से रिलेटेड, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं बर्तन एंड ऑल, वो सब आ जाते हैं। देन कमर्शियल मिक्सी भी नीड जो 5,000 के आसपास की आएगी। स्टोरेज के लिए रैक्स हो गए, दैट इज 12,000। 2 तंदूर हो गए 25,000 के आसपास, अप्रॉक्स 12.5 का एक। देन 2 वीजी कूलर्स हो गए 435 लीटर्स के, एंड 2 डीप फ्रीज हो गए। एक फ्रायर हमें चाहिए जिसकी कॉस्टिंग अराउंड 4 to 5,000 आती है। देन डक्टिंग हो गया, जिससे जो एग्जॉस्ट सिस्टम के ऊपर डक्टिंग लगती है ताकि सारा जो स्मोक है वो बाहर जाए। एक सिंगल कूलर हो गया ताकि एक किचन का टेम्परेचर मेंटेन हो सके। रॉ मसाले इनिशियल हमें 50,000 के आसपास चाहिए होते हैं, जिससे हम लोग अपने मसाले बनाते हैं। देन पैकिंग कंटेनर्स जिसमें हम लोग अपनी ग्रेवीज पैक करके देते हैं, फुल, हाफ, क्वार्टर, वेज, एंड कुछ कॉम्बोज हैं जो हम लोग इनिशियल स्टार्ट करते हैं ताकि कस्टमर आए एंड स्मॉल क्वांटिटी में उसको टेस्ट करे। टिपिकल टच स्क्रीन पॉज प्लस प्रिंटर 55,000 के अंदर आ जाता है। देन एक रिसेप्शन काउंटर जहाँ पे आप लोग ऑर्डर लेंगे या जो भी एंड फ्रंट की अगर हम बात करें, फ्रंट में अप्रॉक्स 8 टेबल्स हमें 8,000 स्क्वायर फुट में लग जाते हैं, जिसकी कॉस्टिंग 30,000 आती है। एंड उसके अकॉर्डिंगली कितनी चेयर्स कितनी सोफा, ये प्रॉपर जब उसका एक जिसको हम बोलते हैं पैमाइश होती है और ड्राइंग्स बनती है, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम भी डिसाइड की कौन सी जगह पे चेयर्स आएंगे, कौन सी जगह पे सोफा आएंगे। टेबल यूटेंसिल्स 50,000 के आसपास आते हैं, जिसमें पेपर प्लेट्स, वाटर प्लेट्स, फोर्क, स्पून सब चीजें आती हैं। एक डिलीवरी बाइक आप 35,000 के आसपास की एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एनी ब्रांड। 1,000 स्क्वायर फुट में 3 AC की नीड होती है, जो 1,20,000 के आसपास आएंगे। देन वुड वर्क हो गया, वुड डेकोरेटिव्स हो गया, ये सारी चीजों का कॉस्टिंग अराउंड 1 लाख रुपीज आता है। एंड ACB लोगो जो काउंटर है उसके पीछे लगता है, जिसकी कॉस्टिंग बैकलिट ACB लोगो अराउंड 20,000 के आसपास आता है। देन ज्यादा लाइटिंग की नीड नहीं होती रेस्टोरेंट में, बट अराउंड 30 35,000 एक्सपेंस उसमें भी आता है। एंड इनिशियली मेन्यू जो हम प्रिंट करते हैं उसकी कॉस्टिंग अराउंड 40,000 आती है। एंड इफ वी सम अप, टोटल कॉस्टिंग इसकी 15,70,000 के आसपास आती है। एंड एज रिटन दीज आर रफ एस्टिमेट्स, एंड ये वेरी करते हैं आपकी जो स्पेस है उसके अकॉर्डिंग। थैंक यू रजनीश जी। इसके अलावा कुछ और भी है जो आप प्रेजेंट करना चाहते हैं फिलहाल? फिलहाल तो यही है मैम, बाकी इन्वेस्टर्स की कोई क्वेरी हो या कुछ हो हाँ तो जी, हाँ जी, उसको जरूर हम एंटरटेन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच रजनीश जी। मेरे को लगता है बहुत डिटेल प्रेजेंटेशन आपने दी है, इंक्लूडिंग ब्रेकअप, जो पूरा इन्वेस्टमेंट क्या
including capex, franchise fees, and then even the equipment that we have shared with our investors. So friends, I'll request all of you, whatever questions you have, आप अपनी Q&A box में डाल सकते हैं. कुछ हाथ मैं देख रही थी रेज हुए हैं, तो हम अनम्यूट नहीं कर सकते किसी को. अगर आप कोई क्वेश्चंस हैं, आप Q&A box में अगर आप लिखेंगे, I'll take all these questions. And एक चीज है रजनीश जी, बिफोर आई टेक क्वेश्चंस, अगर हम हमारा कोई मेन्यू अगर ऑफरिंग है उसके बारे में अगर हम थोड़ा सा डिस्कस कर पाए अपने ऑडियंस के साथ, क्या हमारी ऑफरिंग है, टिपिकल हमारा एवरेज प्राइसिंग क्या रहती है मेन्यू की, अगर कोई हमारे पास प्रेजेंटेशन है, वी कैन टेक देम थ्रू दिस. मैम देखिए, एवरेज प्राइसिंग जो है दैट इज एरिया वाइज, दैट डिपेंड्स कि जो भी इन्वेस्टर्स है वो जो शानेवद में इन्वेस्ट कर रहा है वो कौन से एरिया में खोल रहा है, किस टाइप का हम सेटअप बना रहे हैं. हम कैजुअल डाइनिंग बना रहे हैं, हम फाइन डाइनिंग बना रहे हैं, तो प्राइसेस उसके अकॉर्डिंगली वेरी करता है, पोर्शंस उसके अकॉर्डिंगली वेरी करते हैं, क्योंकि एज पर मार्केट ट्रेंड ही हमें चलना पड़ेगा. हम बहुत ज्यादा प्राइसेस को एक्सैजरेट भी नहीं कर सकते और इतना डाउन भी नहीं रख सकते कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन ना हो. तो दैट डिपेंड्स कि हम लोग कहाँ पे करते हैं. अब अगर आप मेन्यू देखना चाहें तो ये मेन्यू स्क्रीन पे है. दिस इज तंदूरी सेक्शन, ड्राई और नॉन वेज, जिसमें ये सारी आइटम्स हैं हमारी, फ्रॉम अवधी, तंदूरी, अफगानी, हरियाली, ईच एंड एवरीथिंग. देन कबाब का सेक्शन अलग है, जिसमें इसमें इसके अलावा काफी तरीके के कबाब है जो हम लोग शेयर कर सकते हैं. बट अगेन इट्स अ फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट, तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप के कबाब्स होते हैं, क्योंकि उसकी कॉस्टिंग, उसकी सारी चीजें एनालाइज करके ही हम उसको मार्केट में डाल सकते हैं. अगर कैजुअल डाइनिंग में देखो, कस्टमर जो आता है वो एक एवरेज कस्टमर होता है, ज्यादा उसकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्केट हम मेन्यू में ऐसी चीज डाल दें कि जो उसको लगे कि ये एक्सपेंसिव है. एक आइटम की वजह से वो उसको पूरा रेस्टोरेंट या पूरा मेन्यू एक्सपेंसिव ना लगे. ये सारी मटन्स की आइटम्स हैं. देन टिपिकल चाइनीज भी हमने डाला हुआ है, क्योंकि मोस्टली ट्रेंड है. अगर हम लोग किटीज करते हैं उसी रेस्टोरेंट में, तो किटीज में मोस्टली चाइनीज एंड इस टाइप की आइटम्स हैं जो मॉर्निंग में लोग खाना पसंद करते हैं, ज्यादा हैवी नहीं खाना चाहते, तो इसलिए टिपिकल जो चाइनीज है वो डाला हुआ. नॉट फुल फ्लेज, बट हाँ टिपिकल. दीज आर सम ऑफ द पिक्चर्स, जो अगेन ये सारी हमारी अपनी पिक्चर्स हैं फूड की. दीज आर नॉट गूगल इमेजेस. बिरयानी एंड ऑल आप देख सकते हैं. वी वर अवॉर्डेड, ये रिकमेंडेड है ऑन रेस्टोरेंट गुरु इन 2022, शानेवा, आप देख सकते हैं. ये दूसरी जगह का हमारा मेन्यू है, जिसमें अगेन हमने बेसिक्स चाइनीज रखा हुआ है. इसके अलावा नेक्स्ट पेज पे अगर आप देखेंगे, बिरयानीज होगी. अब ये अमृतसर में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ फिश ऐड करी है, जो हमारे दूसरे मेन्यू में नहीं था. तो एरिया वाइज वी हैव टू चेंज मेन्यू अकॉर्डिंगली, जो जो वहाँ की नीड है उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों को मेन्यू चेंज करना पड़ता है. जैसे फिश अमृतसरी, अरी टिक्का, बटर मसाला, अचारी, इसकी लाइकिंग दिल्ली में जो हमारा आउटलेट है मुखर्जी नगर में, वहाँ पे नहीं है. वहाँ पे स्टूडेंट बेस्ड एरिया है, तो वो इतना, ये अगर मैं इस प्राइसिंग की बात करूँ तो ये थोड़ा सा उनके लिए ज्यादा प्राइसिंग है, तो इसलिए ये हमने अमृतसर में रखा था. देन दीज आर ऑल वेज आइटम्स. ये नॉनवेज की आइटम्स हैं सारी. Very helpful, Rajeshi. And कुछ questions, I'll take some questions. Please. And शुरुआत में एक चीज मैं जानना चाहूंगी रजनीशी, food जैसे अगर हम समझते हैं, and food is one industry where a lot of people who come and open outlets or get into the business are people who primarily, most of them, because we've also, been franchising for very long. We see a lot of people who don't come with the एस्पिरेशन बहुत है और इस इंडस्ट्री में, कैटेगरी में आने की, बट लॉट ऑफ पीपल डोंट कम विद द एक्सपीरियंस ऑफ F&B. सो क्या ऐसी 4 या 5 ट्रेड्स आपको लगता है आपके फ्रेंचाइज पार्टनर में होने चाहिए, इफ नॉट द एक्सपीरियंस, एंड कितना रेलेवेंट है इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना टू रन अ प्रॉफिटेबल और अ सक्सेसफुल आउटलेट?
मैम देखिए, कोई फूड लाइन से अगर जुड़ना चाहता है, रेस्टोरेंट लाइन में आना चाहता है, तो एक्सपीरियंस उसे अगर नहीं भी है तो वो चलेगा। इट्स एज सिंपल। वी कैन ट्रेन हम उन्हें गाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। एंड वी हैव फेथ इन आवर स्टाफ। जो स्टाफ, यही रीजन है कि हम लोग कहते हैं कि स्टाफ हम है, क्योंकि स्टाफ की मॉनिटरिंग, ताकि उसमें पिलफरेज ना हो, प्रॉपर क्वालिटी क्वांटिटी ये सब का जो ध्यान रखना है वो हमने रखना। ही हैज टू सिट ऑन द काउंटर, दैट्स इट, नथिंग एल्स इज नीडेड। बाकी डेली बेसिस पे जब आएंगे तो अपने अकॉर्डिंगली ही कैन एक्सपीरियंस की क्या आसपास हो रहा है, ही कैन लर्न ऑल्सो। जैसे इसमें आपने बोला ट्रेनिंग इज समथिंग दैट यू वुड आल्सो हेल्प देम, एंड आई सी बहुत एक्सटेंसिव हमारा मेन्यू है। वी आल्सो हैव ऑफरिंग फ्रॉम चाइनीज टू इंडियन मुगलाई, ऑल दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर मेन्यू। एंड स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट फूड, इसमें फूड कॉस्ट एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है। एंड आई हैव सीन, जो आपने भी शायद तकरीबन आपका 35% शायद फूड कॉस्ट की तरफ हमने लिया है। इसमें पोर्शनिंग के ऊपर क्या आप किस तरीके से करते हैं? बिकॉज पोर्शनिंग बहुत राइट होनी चाहिए टू कंट्रोल द फूड कॉस्ट. So do we train our partners on that? We have defined SOP on the portioning. So वो किस दैट्स तरीके ऑब्वियस। से? वो सारी चीजें करी जाती हैं जब भी हम लोग ओपन करते हैं, तो ये सारी चीजों को एक मैटर पे रख के, इस पे डिस्कस करके ही उसके अकॉर्डिंगली मेन्यू के प्राइसेस एंड फूड कॉस्ट को एनालाइज करके ही हम लोग सब करते हैं, ऐसा नहीं है। एंड अगर इसमें रजनी जी ओवरऑल अगर हम सेल्स की बात करें, हमने कुछ प्रोजेक्शंस इसमें शेयर किए, जो हमारा 6 लाख तकरीबन हमारा इसमें ऑन एन एवरेज हम सेल्स की बात करते हैं। तो एक आउटलेट को वो रेवेन्यू या उस सेल्स को रीच करने के लिए एक तो कितना टाइम लगता है? बिकॉज आपके आउटलेट्स पुराने हैं, दे बीन रनिंग फॉर सम टाइम। सो गिविंग एन एग्जांपल, जो भी आपके करंट आउटलेट्स रन कर रहे हैं, आपने रन किए हैं पहले अलग अलग मार्केट्स में, सो आपके एक्सपीरियंस में एक तो उनकी एवरेज सेल्स क्या निकलनी चाहिए, और दूसरा हमारा कितना टाइम लगता है उस लेवल तक पहुंचने के लिए? मैम देखिए, फूड लाइन ऐसी है, आप डे वन से भी प्रॉफिट में हो सकते हैं। फूड लाइन ऐसी है, आप डे वन से प्रॉफिट में हो सकते हैं। अगर फिर भी वर्स्ट केस सिनेरियो हम लोग लें तो 1 महीने में सब स्ट्रीमलाइन हो जाता है। ऑन हायर साइड इज 1 मंथ। उसके अलावा हम लोग देखिए, जो भी आउटलेट ओपन होता है, ठीक है, उसमें अग्रेसिवली हम लोग उसकी एडवर्टाइजिंग करते हैं, सारी चीजें करते हैं, प्रॉपर प्लानिंग होती है, डोर टू डोर सर्वेज भी होते हैं, मार्केट को पूरा हम लोग जहाँ पे भी ओपन करना है मार्केट सर्वे भी करते हैं, ताकि हम लोग किसी भी एंगल से कोई ऐसी चीज हमसे ना रह जाए जिसमें हम लोग पीछे हो जाए। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग करते हैं। और जो मैंने आपसे ये शेयर किया है, ये तो वर्स्ट केस सिनेरियो है, बेयर मिनिमम सेल की मैंने बात करी। प्रोजेक्शन इज अराउंड 40-45। मैं तो 50% सेल के एनालिसिस किया आपको, जो भी मैंने इन्वेस्टर्स को दिखाया, इट्स अ बेयर मिनिमम। वो खुद इस बात से एग्री करेंगे कि कहीं पे भी एनी रेस्टोरेंट कैजुअल डाइनिंग आप जाते हैं तो 1,000 रुपए का बेयर मिनिमम एवरेज बिल आता ही आता है। 1,000, 1,500, 2,000 तो आ ही जाता है। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम कॉस्टिंग करें, क्या दिन में हमारे पास 10 कस्टमर्स नहीं आएंगे? इन स्पैन ऑफ 8 आवर्स 10 कस्टमर्स भी नहीं आएंगे हमारे पास। एंड इसमें ट्रेनिंग का, एंड आई सी जो भी हमारा इसमें सप्लाई चेन है रजनी जी, वो किस तरीके से, क्या क्या रॉ मटेरियल है या कोई ऐसे प्रोप्राइटरी हमारे आइटम्स है जो फ्रेंचाइजी को हम सप्लाई करते हैं? दूसरा, जो जहां तक ट्रेन शेफ का सवाल है, कितनी स्पेशलाइज्ड ये हमें टीम चाहिए? कैन एनीबडी बी स्किल्ड और मे बी ट्रेन्ड to be a chef in the outlet? So what kind of level of specialization would the chef need is one of the questions. And second, आपका supply chain को लेके है, any items which are centrally procured from your from the company? सेंट्रली हम लोग जैसे शामी कबाब्स हैं या जितने भी कबाब्स हैं, चिकन सीख हो गया, मटन सीख हो गया, ये लोग हम लोग प्रिक्योर करते हैं, इसको बनाते हैं अगेन विद आवर ओन स्पाइसेस, एंड इसी को ही हम सप्लाई चेन के थ्रू जितने भी आउटलेट्स हैं वहां पे इसको भिजवा देते हैं। यानी कितना ऑफन ये सप्लाई होता है? इज इट डन ऑन डेली बेसिस? और शेल्फ मैम लाइफ क्या होती है हमारे दैट प्रोडक्ट की? डिपेंड्स ऑन द सेल। क्योंकि हम इसको आइस ब्लास्ट करते हैं, फ्रोजन करते हैं, इसकी शेल लाइफ 3 मंथ्स होती है। बट इफ डेली इट्स नीडेड, वी कैन सप्लाई डेली ऑल्सो, एंड दैट डिपेंड्स कि कितनी सेल है, कितनी आउटपुट आ रही है, उसके अकॉर्डिंग। I'll take some questions also. I'll take one question from Hiteshi. It's a very relevant question था। So एक तो कौन कौन से zones में या regions में, cities में priority markets हमारे लिए क्या है?
दिल्ली एनसीआर में समझती हूँ एक बड़ी पोटेंशियल मार्केट है, हमारा खुद का प्रेजेंस है, यहाँ पे एक बड़ा क्लस्टर क्रिएट किया जा सकता है। एंड कोई ऐसी लोकेशंस दिल्ली एनसीआर में जो आपको लगता है जहाँ पे करंट डिमांड, बिकॉज आपका प्लेटफॉर्म के थ्रू भी आपका डिमांड आती है, जहाँ पे आपकी डिमांड आ रही है बट हमारी मार्केट्स अभी अंडर सर्व्ड है, सो कौन सी ऐसी लोकेशंस दिल्ली एनसीआर में लगती हैं? दिल्ली एनसीआर के अलावा कौन सी और सिटीज या मार्केट्स हैं जहाँ पे हम जाना चाहेंगे? मैम दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो दिल्ली में ईस्ट दिल्ली जो है वो काफी वास्ट है, वहाँ पे हम लोग अभी तक इतना कैप्चर नहीं किया है, वहाँ आप कर सकते हैं। रोहिणी साइड की मार्केट बहुत वास्ट है, वहाँ आप कर सकते हैं। द्वारका साइड है, वहाँ कर सकते हैं। एंड उसके अलावा गुड़गांव एनी सेक्टर विल डू, देन नोएडा अगेन एनी सेक्टर विल डू। इसके अलावा अगर हम नियर बाय जाएं तो करनाल हाईवे हो गया, अंबाला वाला जो जीटी वाला बेल्ट है, इस पे हम लोग हाँ देख जी। सकते हैं। चंडीगढ़ हो गया, लुधियाना, अमृतसर, शिमला, तो ये सारी जगह हैं जहाँ पे, सिटीज हैं जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। एंड अभिनव जी, आपने क्वेश्चन सेल्स को लेके आपने डाला था हमारे Q&A बॉक्स में। आई होप दैट क्वेश्चन हैज बीन आंसर्ड। यू विल लेट अस नो कौन सी लोकेशन के लिए आप देख रहे हैं। एंड लाइक रजनीश जी मेंशन, जिस भी लोकेशन में हम खोलेंगे देयर विल बी रेकी आल्सो व्हिच वी वुड डू ऑन दैट लोकेशन। कैप्टिव ऑडियंस हमारा कितना है, ये सारी चीजें समझनी बहुत जरूरी है बिफोर अप्रूविंग एनी लोकेशन। बट रजनीश, जस्ट बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, हमारी किस तरीके की मार्केट्स, हमारी नेबरहुड मार्केट्स, डू दे डू वेल? किस तरीके की लोकेशंस पे हम टेक अवे डिलीवरी या रेस्टोरेंट्स हम देख रहे हैं? मैम देखिए, जहाँ पे भी हब होगा दैट्स ऑब्वियस कि वहाँ पे फुटफॉल ऑलरेडी है, वहाँ पे क्लाइंटेज ऑलरेडी है। अगर हब में जाके हम बैठते हैं तो दैट्स मच बेटर। And I have a question from Mr. Piyush Nirula, and maybe I'll extend or expand on that question. And I think what he's trying to understand is, if somebody decides to go ahead, क्या time frame रहता है, from the time the location is decided, because location is very important. That's a starting point. Location decide होने के बाद कितना time लगता है launch तक? और एक चीज और मैं पूछूंगी रजनीश जी, इसमें अगर कोई assistance चाहिए location के ऊपर, वो आप provide करते हैं franchisee बिल्कुल या मैम, prospective बिल्कुल partners को? बिल्कुल हम लोग प्रोवाइड करेंगे। लेट्स सपोज इफ समबडी इज इंटरेस्टेड एंड ही सेड कि सर मेरे पास ये 3-4 लोकेशंस है, तो विल बी हैप्पी टू कम एंड विल जज कि इन 3 या 4 लोकेशन में से कौन सी ज्यादा प्रेफर रहेगी। हम उनके सजेशंस देते हैं। एंड ऑन एन एवरेज 1 मंथ इज नीडेड टू ओपन अ रेस्टोरेंट, क्योंकि जितने भी इक्विपमेंट्स हैं किचन के, जितने भी वो इक्विपमेंट्स जो है एज पर साइज ऑन ऑर्डर्स बनते हैं। तो जब Fabricate उसका होते हैं। हाँ फैब्रिकेट होंगे, तो उसका जब लेआउट बनेगा तो लेआउट के अकॉर्डिंगली हम लोग जब देंगे तो बेयर मिनिमम 15 डेज जो एक एवरेज टाइम होता है जिसमें वो सारी चीजें हमें, काउंटर्स या रेंज है, बर्निंग रेंज है, हुड्स है, ये लोग बना के हमें देते हैं। तो एवरेज इज अराउंड 1 मंथ। एंड अगर टीम अच्छी है, टीम अच्छा काम कर रही है, टिपिकल जो कारपेंटर्स ऑल इन सिंपल लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं, अगर स्ट्रेच करते हैं तो 1 महीने से पहले भी हो सकता है। जो भी आपकी प्रोजेक्ट टीम है, प्रोजेक्ट इसमें आप भी सपोर्ट करेंगे? देयर एनी वेंडर्स, मैम हम भी सपोर्ट करते गाइडलाइन हैं। जो ब्रांड हम की हैं? हम सपोर्ट करते हैं, हम गाइडलाइंस जरूर देते हैं, हम ड्राइंग्स भी देते हैं। बट समहाउ लेट्स सपोज इफ आई सेंड माय टीम टू अमृतसर, तो वो ऑब्वियसली बात है फ्रेंचाइजी को थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगेगा, क्योंकि ट्रेवल कॉस्ट होगी, बहुत सारी चीजें हैं। एंड ईच एंड एवरी फैमिली हैज अ सिंपल कारपेंटर एंड ऑल। तो हम लोग उसी को गाइड कर देते हैं कि आपकी हम लोग ये ड्राइंग्स दे रहे हैं, उनसे मीटिंग करके उनको प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है कि आपने ऐसे बनाना है। उसके बाद दिस पर्टिकुलर माइका वी नीड, दिस पर्टिकुलर शीट वी नीड, हाँ जी, हाँ एसीबी जी। का, तो वो उसके अकॉर्डिंगली हो जाता है। Absolutely, and this is what happens. And friends, just to maybe extend on what Rajesh ji have mentioned, इसमें सारी specifications, guidelines, drawings जो आपके outlet की होंगी, everything would be provided by the company. But इसका execution आपके local contractor हैं, वो उसका लोकल execution आपका कर सकते हैं. So on अगर an किसी का average, लोकल कॉन्ट्रैक्टर नहीं है तो कॉन्ट्रैक्टर भी हम लोग भेज देंगे, नो sure. इश्यूज। Helpful. And एक क्वेश्चन नितिन जी पूछ रहे हैं, एंड हिज क्वेश्चन इज, अगर लोकेशन डिटरमाइन करनी है, कोई भी 3 या 4 फैक्टर्स कौन से होने चाहिए डिटरमाइन करने के लिए लोकेशन वर्क्स बेस्ट? मैम प्रेफरेंस इज ग्राउंड फ्लोर, एंड सेकेंडली वी नीड 2 एंट्रीज, फ्रंट एंड बैक। अगर बैक ओपन हो तो मच बेटर, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। लेट्स सपोज चिकन सप्लायर है या कुछ चीजें हैं, आटा चावल, सिंपल लैंग्वेज में मैं बात करूंगा, ये हमें नीडेड है। इफ वी नीड अनदर मोर ऑफ आटा एंड मैदा, तो इट्स वेरी ऑकवर्ड कि हम कस्टमर्स बैठे हैं उनके सामने से सारा स्टॉक जा रहा है।
स्टॉक ऑलरेडी इन्वेंट्री करके चलते हैं, स्टॉक फुलफिल करके चलते हैं, बट समहाउ समटाइम्स ऐसा होता है कि सप्लाई लेट हो जाती है या कुछ हो जाता है, तो अगर बैक एंट्री होगी या साइड एंट्री होगी तो दैट्स मच प्रेफरेबल। एंड इसमें रजनीश जी, आर वी लुकिंग एट ओनली एट फ्रेंचाइजी एंड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड मॉडल? अगर किसी की लोकेशन हमें समझ में आती है, can we also consider maybe a company owned operations invested by the franchisee? Is that an option? Because I saw that question coming in, so I wanted to मैम एट प्रेजेंट तो अभी तो फोफो मॉडल ही, in future will opt for that also. Sure, helpful. And Nitin ji, just to extend on your question, because your question was, how do we determine and decide what location should we get into? And if I tell you the thumb rule of, looking and maybe narrowing down on a location, ऑलवेज लोग जिस भी मार्केट में आप खोलना चाहते हैं उसमें आप देखिए कि आपका जो कंपटीशन है, नियरेस्ट कंपटीशन, जो भी अपॉर्चुनिटी या ब्रांड आप देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द कैप्टिव ऑडियंस, प्राइसिंग को भी लेके, ऑफरिंग को भी लेके, आप देखिए कि आपका जो नियरेस्ट कंपटीशन उस मार्केट में किन किन लोकेशन पे प्रेजेंट है। एंड जिन लोकेशंस पे अगर आपको कंपटीशन अच्छा कर रहा है, समटाइम्स एक मार्केट होती है वहां पे 3-4 कंपटीशन होते हैं, बट हर एक मार्केट सेम तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करती है। सो लुक एट दोज मार्केट्स वेयर कंपटीशन इज परफॉर्मिंग देयर बेस्ट, एंड इफ यू गो बाय दिस रूल, there's a I would say higher probability of success in these locations. So ये location का एक thumb rule है which we always advise our investors to follow. And अभिनव जी, the current sales पूछ रहे हैं रजनीश जी, जो हमारी average sale हमारे current outlet पे होती है वो कितना वेरी करती है? मैम अभी सेल्स की बात करें तो कोविड के बाद अब जाके सिचुएशन ईज हुई है, अराउंड पिछले 6 महीने से सेल्स अच्छी हैं, पहले नहीं थी। अभी अराउंड देखो कोई भी आउटलेट हो 10+ तो बड़ा इजी करता है, एंड दैट डिपेंड्स कि आउटलेट पे क्या आइटम्स है, क्या उसकी एवरेज कॉस्टिंग आ रही है। 10+ इज वेरी इजी। एंड एक चीज और मैं जानना चाहूंगी, बिकॉज हमारे ऑपरेटिंग कॉस्ट में एक हमने कंपोनेंट जो मेरे को लगता है तो हमने डाला नहीं है, या इफ यू वांट टू एक्सटेंड, जैसे हमारे ये प्लेटफॉर्म पार्टनर्स हैं, स्विगी है, जोमेटो है, टिपिकल इसमें हमारा कमीशन स्ट्रक्चर क्या होता है? और अगर हम डिलीवरी, टेक अवे और ऑनलाइन पार्टनर्स के थ्रू अपना सेल्स या रेवेन्यू अगर हम देखते हैं तो ऑन एन एवरेज हमारा क्या रेशियो किस में बैठता है? मतलब कितना हमारा टेक अवे होता है, कितना हमारा? दिस पार्ट इज फॉर जब फ्रेंचाइजी सामने बैठेगा तो ये पार्ट उसके लिए रखा हुआ है। तो जब सामने बैठेंगे, जब मीटिंग होगी, देन आई विल डिस्कस ऑन दिस। आई ऑलरेडी हैव दिस ऑन माय माइंड कि अगर ये 20% उनको दे देंगे, 6% हमें दे देंगे, तो प्रॉफिट मार्जिन इनका कम हो जाता है। बट 20 भी सारा नहीं होगा, बिकॉज सारा का सारा आपका ऑनलाइन नहीं जाता है, यू विल आल्सो हैव लॉट ऑफ टेक अवे। तो इसमें एवरेज रेशियो क्या आता है? बिकॉज रेशियो डिपेंड करता है, अगर आपका सिट डाउन है तो सिट डाउन में आपका डिलीवरीज कंपैरेटिवली कम होते हैं। अगर टीम है, हमारे पास डिलीवरी बॉयज हैं, वी आर केपेबल, हम खुद अपनी डिलीवरी करेंगे, व्हाई टू डिपेंड ऑन स्विगी एंड जोमैटो। बट हाँ, उनकी प्रेजेंस होनी जरूरी है। समटाइम्स कस्टमर नीड स्विगी एंड जोमैटो आल्सो, बट वी प्रेफर कि 80% हम अपनी डिलीवरी खुद करें एंड 20% वी रिलाई ऑन स्विगी एंड जोमैटो ऑनलाइन पार्टनर्स। एंड एक और चीज है, आई थिंक दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच इज आस्क्ड बाय मिस्टर अभिनव सेठ। ही इज आस्किंग, इज देयर एन ऑप्शन टू ऐड लिकर टू द मॉडल? ये ऑप्शन हम कर सकते हैं अगर हम ये आप डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। एंड इसमें जो आपका इन्वेस्टमेंट आएगा वो, अभिनव जी, द लाइसेंसेस व्हिच आर रिक्वायर्ड, देयर इज अ लिकर लाइसेंस व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन, एंड वो सब फ्रेंचाइजी पार्ट पे रहेगा। हाँ जी। So great, that's helpful, Rajneesh ji. And friends, I'll request, I don't know what places, अगर आपकी किसी की भी कोई प्रॉपर्टी है, लोकेशन है, specifically if you're discussing on that, please let us know. And we'll get you connected with Rajneesh ji. Delhi NCR हम देख रहे हैं, हम यूपी की मार्केट्स में भी देख रहे हैं, एंड वी आर ऑल्सो लुकिंग एट ट्राई सिटी, जैसे चंडीगढ़ हो गया, जीरकपुर हो गया, मोहाली हो गया, ये सब लोकेशंस फिलहाल ओपन है। एंड रजनीश जी, जितनी भी हमारी सप्लाई जाएगी, अगर दिल्ली एनसीआर के बाहर की अगर हम बात करते हैं तो would we follow the same structure? Would we have consistency of supply outside Delhi NCR? Exactly, ma'am. Exactly. Okay. So, friends, thank you for being with us. I also thank Rajneesh ji for presenting the opportunity to all of us. And we are planning a discovery day on 20th of July. And I'll request all of you, if you want to even meet, agar aap existing location pe aana chahte hain, and this is something I recommend always, anybody who wants to explore, because aap virtually aap baat kar sakte hain, we can show everything on maybe a Zoom call, or we can discuss things on a telephonic discussion when we do. But if you're keen to explore further, aap
ज्यादा इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो आउटलेट का विजिट कीजिए. मे बी डू अ टूर ऑफ देयर एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज ऑल्सो, डू अ फूड ट्रायल, सिट विद देम, अंडरस्टैंड द बिजनेस, द वैल्यूज ऑफ द कंपनी. And we have kept a day for 20th of July, but for reasons if you're not available on that day, we're happy to even conduct these meetings on any alternate day, which can start as early as today also. So अगर आपकी immediate requirement है या date है जिस दिन आप available हैं, आप please हमें reach out कर सकते हैं. We'll put our hotline number in the chat box, also our email ID जिसके ऊपर आप call कर सकते हैं, आप WhatsApp कर सकते हैं, and we'll help you connect with Rajnish ji over a call or a meeting, and our teams at Franchise India will facilitate the entire structure. And before we close, Rajnish ji, I'll request if there's a message that you want to give to everybody who's listening to you, both live and on the webinar. Simple message, you're most welcome. Anytime, any outlet, you're most welcome. आप आ सकते हैं, आप फूड टेस्ट कर सकते हैं. एंड इन शॉर्ट एंड सिंपल लैंग्वेज में एक बात बोलूंगा कि हर कंपनी अपनी बड़ाई करती है. हर कंपनी बोलेगी दैट वी आर द बेस्ट, बट फूड स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. ठीक है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम लोग छोले भटूरे खाने कहीं और जाते हैं, चिकन खाने कहीं और जाते हैं, मैगी, इनफैक्ट मैगी खाने हम एक पर्टिकुलर 5 किलोमीटर दूर जाते हैं जितने की मैगी नहीं होती. तो दैट्स टेस्ट. तो टेस्ट वेरीज अ लॉट. तो अगर किसी को भी टेस्ट करना है, कोई भी हमसे एसोसिएट होना चाहिए, जस्ट लेट मी नो, आई विल बी देयर, एंड मैं आपको आपके टेस्ट बस जो है उसको पूरा रिलीज करूंगा. Thank you so much, Rajnish ji. And before I close, मैं request करूंगी Ashna आपको, if you can come and give your concluding remarks. And friends, I still see आपके कुछ हाथ अभी भी मैं raised देख रही हूँ. अगर कोई questions है आप please लिखिएगा, और हमारी टीम जो दिल्ली में काम कर रही है पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर, वो आप सबसे बात करके any information that you want, presentation है, financial working है, we'll email it to each one of you. Over to you, Ashna. So thank you so much, Rajnish sir. Thank you so much, Sonia ma'am. Thanks all the dear participants for joining in today. Please connect with us at our different social handles to share your valuable suggestion and feedback. We are available at Facebook, Instagram, LinkedIn, and Twitter. Also, you can connect with us at our business number, which is 9717683838. Write to us at feedback@franchiseindia.in. In case you wish to understand different international, national business model, different opportunities for you to become partner with even Franchise India, please connect Gaurav sir and Sonia ma'am at their LinkedIn IDs. And tomorrow, under our 12 p.m. webinar, we are bringing the brand which comes from a retail category. The brand comes from Pune. It's Beatitude, and they are known for their designer sarees. They are offering the franchisee invested, franchisee operated model. We look forward to have you in tomorrow's webinar. To join the webinar, do registration with us. Registration can be done either by joining us at any of our social page where there is a registration link, or connect with us at our business hotline number. Look forward to have you in tomorrow's webinar. Thank you so much once again for joining in today. Have a great day ahead. Thank you. Thank you.